السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین نظام، ناظرین اکرام، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قربانی کا دن قریب آتا جا رہا ہے اور لوگ تیاریوں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ کوئی قربانی کا جانور خرید رہا ہے تو کوئی نیا لباس خرید رہا ہے۔ اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ چوراہوں میں، ہوٹلوں میں اور قہوہ خانوں میں، گلی کوچوں میں بہت سے لوگ ہمارے اور آپ کے بھائیوں میں سے یہ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قربانی واجب ہے یا سنت۔ اسی بات کو لے کے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ کسی بھی مسئلے میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو حدیث کی طرف آئیے، دلیل کی طرف آئیے اور دلیل سے بات کیجیے۔ ایسے لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا آج میں ان لوگوں کے لیے درس لے کر حاضر ہوا ہوں جو لوگ قربانی کے واجب ہونے اور قربانی کے سنت ہونے کے درمیان اپنے آپ کو الجھائے رکھتے ہیں اور جھگڑتے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ میں پڑے رہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل کی روشنی میں کن لوگوں کی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی دلیل کیا کہتی ہے، کن لوگوں کی دلیل زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ہے۔ قربانی کو واجب کہنے والوں کی دلیل زیادہ صحیح ہے یا قربانی کو سنت کہنے والوں کی دلیل زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے حدیثیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر فیصلہ کن بات ہوگی۔ سب سے پہلی حدیث جو اس باب میں بیان کی جاتی ہے وہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء، رواه البخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن فرمایا کہ آج کا میرا سب سے پہلا کام یہ ہوگا، جس کام سے، جس عمل سے ہم شروعات کریں گے ہمارے آج کے اس دن میں، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد گھر کو واپس ہوں گے، فننحر، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا، پہلے نماز پڑھی یعنی عید کی، اس کے بعد گھر کو واپس ہونے کے بعد قربانی کی، جس نے ایسا کیا، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور ومن ذبح قبل، اور جس نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر ڈالا، تو فإنما هو لحم قدمه لأهله، وہ صرف گوشت ہے جو وہ اپنے اہل و عیال اور گھر والے کو پیش کر رہا ہے، دے رہا ہے، لیس من النسک فی شیء، قربانی میں اس کا کوئی حصہ اور ثواب نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ مسلم، کہ جب تم کیا کرو، چاند کو دیکھ لو، ذی الحجہ کے چاند کو، اور تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنا بال اور اپنا ناخن نہ تراشے، نہ کاٹے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ دونوں حدیثیں سنت کہنے والوں کی دلیلیں ہیں۔ یہ دو حدیثیں سنت جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنی دلیل میں ان دونوں حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے ان کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں جو لوگ قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل وہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، رواه الحاکم وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ताकत रखते हुए ताकत के बावजूद, कुदरत के बावजूद कुर्बानी ना करे, वह हमारी ईदगाह में हाजिर ना हो। ये रिवायत, सही बात यह है कि हजरत अबू हुरैरा का कौल है, मौकूफ रिवायत है, मरफू नहीं है, और मौकूफ ही के एतबार से ये रिवायत हसन दर्जे की है। और दूसरी रिवायत वजूब कहने वालों की वो ये है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उज़हिया, राहु अत-तिरमिज़ी व हसनहुल अलबानी व ज़अफ़हु ज़ुबैर अल-ज़ई रहमहुल्लाह। यानी इस हदीस में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर हर साल हर घर वाले पर कुर्बानी करना जरूरी है। तो इस हदीस को इमाम अलबानी ने, अल्लामा अलबानी ने सही हसन कहा है, लेकिन ज़ुबैर अल-ज़ई साहब ने इसको क्या कहा है, ज़ईफ कहा है। तो दोनों तरह की रिवायतें आपके सामने पेश की गई। वजूब के कायलीन के लिए ये दो दलीलें पेश की गई, उनमें से एक मौकूफ और उनमें से एक ऐसी हदीस जिसके दर्जा इस्नाद में कलाम है, यानी बाज ने हसन कहा तो बाज ने ज़ईफ कहा। ये वजूब कहने वालों की दलील है। पता ये चला कि जो लोग कुर्बानी को वाजिब मानते हैं, कुर्बानी को वाजिब कहते हैं और वजूब के लिए जो दलील पेश करते हैं वो दलाइल कमजोर हैं उन दलाइल के मुकाबले में जो लोग कुर्बानी को सुन्नत कहते हैं। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी को सुन्नत कहने वालों की दलीलें ज्यादा कवी और ज्यादा मजबूत है। इसलिए कि उनमें से एक दलील जिसमें यह है कि फ़क़द असाब सुन्नतना, सुन्नत का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, वो बुखारी की हदीस है। और दूसरी हदीस जो सुन्नत कहने वालों की दलील के तौर पर है वो ये है जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसमें यह है कि अरादा अहदुकुम कि तुम में से कोई इरादा करे युज़हिया, कोई कुर्बानी करेगा तो चाहिए कि अपने बाल और अपने नाखून को ना काटे। तो इसमें यह कहा गया कि जो इरादा करे कुर्बानी करने का, तो इससे भी पता चलता है कि ये इरादे की बात है और जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है, चाहने की बात है। तो इससे ये पता चला कि कुर्बानी क्या है, तरीका सुन्नत है, सुन्नत तरीका है। और ये सुन्नत ऐसी सुन्नत नहीं जो यूं ही ताकत रहने के बावजूद हम छोड़ दिया करें, नजरअंदाज कर दें और हम इसको ऐसे ही समझें, ऐसी सुन्नत नहीं, बल्कि ये सुन्नत वजूब से थोड़ा सा कम है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा। और सुन्नत मुअक्कदा इसीलिए कहा फुक़हा ने, आइम्मा ने, क्योंकि दोनों तरह की हदीसें मौजूद हैं और वजूब की दलीलें कुछ कमज़ोर हैं और सुन्नत की दलील ज़्यादा मजबूत है। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा का जो खुलासा कलाम निकला वो सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का कौल ज़्यादा राजिह और ज़्यादा सही है। और सुन्नत मुअक्कदा कहने वालों में इमाम शाफी हैं और इब्न कुदामा हैं, और सुन्नत मुअक्कदा कहने वालों में बहुत से लोग हैं। सुन्नत कहने वालों में जैसे हज़रत अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। तो ये सारे लोग इसको सुन्नत कहते हैं दलील की मजबूती की वजह से, दलील की रोशनी में। इब्न कुदामा कहते हैं कि अक्सरो अहलिल इल्म यरौना अल-उज़हियता सुन्नतन मुअक्कदतन गैर वाजिबा, कि अक्सर अहले इल्म कुर्बानी को ये सुन्नत मुअक्कदा कहा है, अक्सर अहले इल्म ने, और उसको वाजिब नहीं कहा कि ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और वकाल इमाम शाफी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने ये कहा कि अल-उज़हियतु सुन्नतुन मुअक्कदतुन व शिआरुन ज़ाहिरुन, के सुन्नत मुअक्कदा है ये कुर्बानी और एक इस्लामी शिआर है, इस्लामी शान है। और जो शख्स ताकत पाए, वो आगे फरमाते हैं कि यंबगी लिल कादिर अलैहा अल मुहाफ़ज़ा अलैहा, जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है, कुर्बानी करने पर कादिर है, वो चाहिए कि वो इस सुन्नत की मुहाफ़ज़त करे, इस सुन्नत की हिफाजत करे, इसको ज़ाय होने ना दे। यानी जो शख्स कादिर है कुर्बानी करने पर, उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे।
उसके बाद फरमाया कि वला तजिबु बिअस्ल शरअ, शरीयत के असल दलील को देखा जाए तो ये कुर्बानी वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। लिअन्नल असला अदमुल वजूब, इसलिए कि असल दलील आदम वजूब पर दलालत करती है। इमाम शाफी का ये कौल है। तो बहुत बड़े बड़े अइम्मा और मुहद्दिसीन ने कहा कि सुन्नत मुअक्कदा है कुर्बानी, वाजिब भी नहीं, जो ना करने पर बिल्कुल उस तरह का गुनाह हो जिस तरह के नमाज के तारिकीन पर गुनाह है, या हज की ताकत रखने वाले अगर हज ना करे तो उस पर जिस तरह गुनाह है वैसे नहीं है, लेकिन ये सुन्नत भी नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए और इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि ये क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा यानी ताकीद वाली सुन्नत। बहुत सारी हदीसें ऐसी बयान की गई हैं और बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं जिन हदीसों से, और जो हदीसें अभी पेश की गई इस दर्स में, इन अहादीस से भी पता चलता है कि अगर कुर्बानी वाजिब नहीं तो सुन्नत मुअक्कदा ज़रूर है जिसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। और इस सुन्नत की हिफाजत करते हुए हमें ताकत के बावजूद अगर कुर्बानी ना करें तो ऐसा ना करें बल्कि ताकत रहने पर हमें ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। यही राज कौल है कि यह सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मसले को दलील की रोशनी में समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।